एवरीवन, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਗਣਿਤ ਮੈਥਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਉਹਦਾ 7ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼। ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 7.4 ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ। ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗ੍ਰਾਹਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਸ਼ॉपकीपर, ठीक है। मान लो ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਵੇਚਿਆ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ ਲਾਤਾ, ठीक है। 15 रुपए हो गए जेडे इन्हें ले। उन्हें 5 रुपए जेडे 15 रुपए दे नां ते लए ए ओने किनू देने हैं? गवर्नमेंट नू। ये गल याद रखियो, ओनू आपां सेल्स टैक्स कहंदे आ। ते इत्थे जिवें दस्सिया गया अजकल तां गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू हो गया ते जेड़ा सेल्स टैक्स हैगा बिल दी अमाउंट दे विच ऐड हो जांदा है। जिवें हुण आपां इनू कढदे किवें? देखो, फाइंड द बाइंग प्राइस। इन्हें ते सामान खरीदिया गया of each of the following items, 5% sale tax is added to the purchase of a towel ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦਾ। ਟਾਵਲ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ ਲੱਗਿਆ 5%। 5% of 120, 5 by 100 multiplied by 120। ਕਟਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਰੁਪਏ। ਉਹ ਬਿਲਿੰਗ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦੋ, ਜਿੰਨੀ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਈਟਮ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ ਐਡ ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਟੋਟਲ ਬਿਲਿੰਗ ਅਮਾਉਂਟ ਆ ਜਾਏ। बुक दे विच दूजे तरीके नाल सॉल्व कीता है, सिंपल दसदा। उन्होंने कहा भी सेल्स टैक्स 5% है। मान लो 100 रुपए की चीज है तो 5 रुपए सेल्स टैक्स होएगा। 1 रुपए की है तो 5/100 ते जे 120 रुपीस की है तो 5/100 मल्टीप्लाइड बाय 120। वो मैं इदा ही लिखता 5% ऑफ 120। उवें ही एदे विच भी 5% ऑफ 450 हो जाएगा 5/100 मल्टीप्लाइड बाय 450। ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਇਹ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀਗੀ, ਬਿਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ LED ਟੀਵੀ ਖਰੀਦਿਆ ਇੰਨੇ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ 8% ਇਨਕਲੂਡਡ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਵੀ ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀ। ਇਹ 8% ਐਡ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। मान के चलो प्राइस विदाउट सेल्स टैक्स तो बिना ले लो ₹100 ते जे आपा सेल्स टैक्स ऐड कर देने हैं प्राइस विद सेल्स टैक्स वो होगी 108 रुपए। हुण ये 108 जे विद सेल्स टैक्स हैगी है, ठीक है। तां पहला किन्नी सी ओरिजिनल ₹100, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਕੇ 5400 ਰੁਪੀਸ। ਤਾਂ ओरिजिनल ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ 100/108 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 5400। ਕਟਿੰਗ ਕਰੋਗੇ 5000 ਆंसर ਆ ਜਾਏਗਾ ਇੰਨੇ ਰੁਪੀਸ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? 108 ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਲਿਖਿਆ। ਜੇ 108 ਸੀ ਤਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਵਿਦਾਊਟ ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ, ਇਹ ਕਾਸਟ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਲਈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਾਸਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਟੀਵੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ 8% ਹੈ, ਬਿਲ ਅਮਾਉਂਟ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਸਟ ਆਫ ਟੀਵੀ ਸੈਟ ₹36500, ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ 8%, ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ 8% ਆਫ 36500, 8/100 ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ 36500। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗਿਆ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਆ ਗਿਆ ₹2920। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਬਿਲ ਅਮਾਉਂਟ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਬਿਲ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇ ਲਈ ਕਾਸਟ ਪਲੱਸ सेल्स टैक्स। कॉस्ट कितनी सी? ₹36500 प्लस ₹2920।
जब दोनों नू ऐड करोगे तो थोड़े कोल अमाउंट आ जाएगा जी ₹39,420। एलईडी टीवी इन्ने दा अवेलेबल है इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स, यानी ये इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स हैगी है। ओरिजिनल प्राइस इन्नी हैगी है, रेट की हैगा सेल्स टैक्स दा ओ सानू काटना है। चलो इनू सॉल्व करांगे। ओदे लई सब तो पहला आपां इत्थे लिख लैंदे आ कॉस्ट ऑफ एलईडी टीवी आफ्टर टैक्स ओ कितनी हैगी है ₹26,880। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एलईडी टीवी 24,000। टैक्स किन्ने दा पिया होएगा माइनस कर दांगे, यानी कॉस्ट आफ्टर टैक्स माइनस कॉस्ट बिफोर टैक्स, दोनों नु माइनस कर दांगे। ₹26,880 माइनस 24,000 माइनस कीता ए आ गया। हुन आपा करना है रेट ऑफ टैक्स, यही करना है। ए टैक्स आ गया, रेट यानी परसेंटेज, टैक्स बटा ओरिजिनल कॉस्ट, ए फॉर्मूला याद रखियो, मल्टीप्लाइड बाय 100। टैक्स कितना है 2880, ओरिजिनल कॉस्ट एसी, ए टैक्स तो बाद सी, ओरिजिनल एसी 24,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, ए 2 0 नाल ए, एदे नाल ए कटिंग करोगे 12% आ जाएगा। ठीक है, परसेंटेज दे विच आ गया आंसर। तीजा सवाल, सेल्स टैक्स दिता हुआ 8%। इफ राहुल बॉट अ वॉशिंग मशीन, उन्हें एक वॉशिंग मशीन खरीदी एंड पेड अ सेल्स टैक्स दसिया हुआ इन्ना रुपीस। कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन बिफोर सेल्स टैक्स तो पहला कितनी रकम सी। देखो इत्थे आपां लिखते हैं रेट ऑफ टैक्स कितना है 8%, टैक्स पेड 1920 रुपीस, लेट कॉस्ट बिफोर टैक्स, टैक्स तो पहला x रुपीस सी, यानी कि 8% ऑफ x कितना होएगा 1920, 8/100 मल्टीप्लाइड बाय x 1920। कॉस्ट बिफोर ते ही लगता है ना, x नु सॉल्व कीता 1920 बटा 8 मल्टीप्लाइड बाय 100, यदि कटिंग जद करोगे थोड़े कोल आंसर आ जाएगा जी ये 1000, इत्थे आ गया 240, ये आ गया ₹24,000। उन्होंने कहा भी ओरिजिनल प्राइस जेडी है वो काटनी है बिफोर टैक्स दे, ओरिजिनल प्राइस बिफोर टैक्स वो कितनी आ गई, यही तो कड्डी है, क्योंकि ओदे ते दा डिस्काउंट ला के आपा डिस्काउंट दे जिन्ना सी सॉरी सेल्स टैक्स ही वो काट लिया सी। अगला, Seema bought a box of biscuit NA दे which includes a sales tax of N। प्राइस काटनी है विदाउट सेल्स टैक्स, जिवें आपा एग्जांपल ट्राई कीता है बिल्कुल उदा दा उदा ही क्वेश्चन हैगा, ओनु उदा ही सॉल्व करना है। कॉस्ट ऑफ बिस्किट्स विद सेल्स टैक्स कितनी कॉस्ट हैगी है ₹904, इतनी कॉस्ट हैगी है। टैक्स कितना है 13%, लेट कॉस्ट ऑफ बिस्किट्स बिफोर टैक्स, टैक्स तो पहला x रुपीस ले ते आपा कह सकते हैं 13% ऑफ x इज इक्वल टू की हो जाएगा 13/100 मल्टीप्लाइड बाय x, यही होएगा। हुन सानू पता है जद आपा सेल्स टैक्स प्लस जेडी कॉस्ट सी उन्हें ऐड कर दिंदे हैं तां कॉस्ट आ जाती है विद सेल्स टैक्स, यही आएगा। सेल्स टैक्स कितना हैगा साडे कोल परसेंटेज दे विच जेड़ा दिता होया है, ये आ जाएगा ना, सेल्स टैक्स का जेड़ा हैगा नंबर वो ए आएगा 13/100 ऑफ x प्लस कॉस्ट कितनी सी x, ये दोनों नु ऐड कीता तां आंसर कितना आना चाहिए 904। ऐदा ही सॉल्व करांगे।
एलसीएम लिया 100, 13x प्लस 100x इज इक्वल टू 904 आ गया। ये आ गया 113x बटा 100 इज इक्वल टू 904। x कॉस्ट आ जाएगी 904 मल्टीप्लाइड बाय 100 बटा 113, एदी कटिंग 1 इत्थे आ गया 800 रुपीस। x की मन्निया सी आपां कॉस्ट ऑफ बिस्किट्स बिफोर टैक्स, ते आपां इत्थे लिखांगे कॉस्ट बिफोर या कॉस्ट ऑफ बिस्किट्स बिफोर टैक्स इज इक्वल टू ₹800। ये तो एक तरीका है, पर तुसी इहनू जिवें आपां पिछले एग्जाम्पल नू सॉल्व कीता है ना, इस तरीके नाल भी सॉल्व कर सकते हो। अगे कॉस्ट ऑफ पेयर ऑफ शूज इज इतना, सेल्स टैक्स इज इतना, बिल अमाउंट कटनी है, तो बहुत ही सौखा हो गया। देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ cost of pair of shoes ₹440, टैक्स 5%, टैक्स किवें कटांगे 5% of 440, 5 by 100 multiplied by 440 ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗਿਆ 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਦੇ ਟੇਬਲ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ₹22। ਹੁਣ ਬਿਲ ਅਮਾउंट ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ₹440 प्लस ₹22, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ₹462। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨ। सेल्स टैक्स ऑन एन आइटम एना विद मार्क्ड प्राइस एना की आएगा? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਜੇ ਦਸੀਏ 5% ऑफ 200 5 बटा 100 मल्टीप्लाइड बाय 200, 20 नाल 20 गए मल्टीप्लाई कीता, साडे कोल आ गया जी 10 रुपीस। उवे ही सेल्स टैक्स इना इज लेवाइड ऑन शूज लग्या है एदे ते, फाइनल प्राइस कितनी होएगी? सेल्स टैक्स 15% लग्या 2000 ते टैक्स कितना लग्या 15% ऑफ 2000, 15 बटा 100 मल्टीप्लाइड बाय 2000, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦੋ 300, ਇਹੀ ਆਏਗਾ। 300 ਐਡ ਕਰਨੇ ਨੇ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ओरिजिनल प्राइस है वो ये आ जाएगा। अगला, अ बुक आफ्टर एडिंग सेल्स टैक्स एने दी विकी, प्राइस बिफोर एडिंग सेल्स टैक्स कितना है? देखो ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋल्व ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ ਆ let price before sales tax is equal to x rupees, टैक्स कितना सी 10%, यही लग गया 10% of x, 10 by 100 of x, ये आ गया 1 by 10 of x। हुण देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ टैक्स ऐड कर दिए कॉस्ट प्लस टैक्स इज इक्वल टू जिन्ने दा वो बिकिया बिलिंग अमाउंट है ना, वही आएगा ना। कॉस्ट कितनी है x प्लस x बाय 10 इज इक्वल टू सोल्ड फॉर 165। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 10 LCM ਲਿਆ 10x plus x is equal to 165, 11x बटा 10 is equal to 165, x is equal to, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ 11 ਦੇ ਟੇਬਲ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਟਿੰਗ ਹੋके 15, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 150 रुपीस। उवे ही क्रिकेट बैट दी लिस्ट प्राइस यानी कि मार्क्ड प्राइस दी हुई है इज सोल्ड आफ्टर एडिंग सेल्स टैक्स एना, सेलिंग प्राइस की होएगी? सिंपल, इनू आपां इदां सॉल्व करते हैं 8% ऑफ 5000, 8 बटा 100 मल्टीप्लाइड बाय 5000, कटिंग होगी 8 नू 50 ना मल्टीप्लाई कीता ₹400 आ गया। हुणे 400 जिहड़ा है टैक्स आया वो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ऐड कर दो, 5000 प्लस 400 ਇਹ आ गया 5400 आंसर। ਤੇ ਇਹ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ। ਪਲੀਜ਼ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਜੇ ਭੁੱਲ ਜੋਗੇ ਨੰਬਰ ਕੱਟ ਜਾਣਗੇ।
ਤੇ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਲਾਸ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ।